champions. So in today's class we are going to learn about how to calculate interest on capital, and in case closing capital is given in the question, then how to calculate opening capital. That is very important. You have to be very careful, children. Suppose in question capital as on 31st March is given, like normally it's given as on 1st April, आप लोगों ने देखा होगा, but in case it is written capital as on 31st March, so what you have to do, you have to calculate opening capital, because for interest on capital opening capital should be there. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं रिपीट कर रही हूँ, हमेशा आप कब करते हो कैलकुलेट, जब आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हो. ऑब्वियसली पार्टनर्स ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया स्टार्टिंग में, उसके ऊपर फर्म जो है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी. सो इन केस अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, मीन्स आपको बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे you can pause this video and open a new page and you can start writing. Interest on capital is always allowed on opening capital. I am repeating, interest on capital is always allowed on ओपनिंग कैपिटल. नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन में एज ऑन 31st मार्च दिया होगा आपको कैपिटल, बट वो इग्नोर करते हैं और उसी के ऊपर वो क्या करते हैं, अपना आईओसी कैलकुलेट कर देते हैं. तो उससे क्या होगा, जब आपकी स्टार्टिंग में ही अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो तो अब जब आईओसी ही गलत निकली है तो आगे एप्रोप्रिएशन भी गलत हो सकता है. एप्रोप्रिएशन गलत होगा, ऑब्वियसली आपका पार्टनर्स कैपिटल में जो आप ट्रांसफर कर रहे हो बैलेंसेस वो गलत हो जाएंगे प्रॉफिट के. सो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी अलर्ट हियर. आईओसी इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल. Then case 1, when capital account is fluctuating. See, if you remember in the previous class we have done types of capital account. One is your fluctuating capital account, the another one is fixed capital. Fluctuating means एक ही capital में जो भी changes हो रहे हैं हम सब कुछ वहीं दिखाएंगे. बैलेंसेस वहीं हमने ट्रांसफर किए, ब्रॉट डाउन किए. अगर आप पार्टनर को आईओसी पे कर रहे हो, सैलरी कमीशन व्हाटएवर, उनकी कुछ ड्राइंग्स हैं तो सब जितनी भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं हम वहीं पे दिखा रहे हैं. But in case of fixed capital, two types of accounts are there. One is your partner's capital account and the second one is your current account. So partner capital, if you remember, एक recall कर लेते हैं फटाफट से. In partner's capital, under fixed capital, 4 items appear in partner's capital account. So on debit side, permanent drawings and closing balance, and on credit side, opening balance and additional capital. Right? So now coming back to the topic, interest on capital. So our case 1, you can open a new page and start writing with me. When capital account is fluctuating. When capital account is fluctuating. So let's take one example. Opening capital is given as 6 lakh rupees. Opening capital means 1st April, let's say 2019. Then additional capital is also given in the question. Additional capital as 1 lakh rupees, right? Date 1st October 2019. Closing capital is also given. Closing capital 6 plus 1, obviously 7 lakh rupees. Closing will be 7 lakh rupees. Date is 31st March 2020. What we have to calculate? Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. Very easy. क्या करेंगे इसमें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल IOC, computation of IOC, 6 lakh rupees into 10 upon 100. जो ओपनिंग कैपिटल 1st अप्रैल को फर्म के पास आया उसके ऊपर तो फर्म जो है पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर्स को. तो यहाँ पे आपका आ गया 60,000 rupees. Then additional capital was introduced on 1st October. So October till
31st मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का यहाँ पे जो है एडिशनल कैपिटल हम लोग उसके ऊपर विल कैलकुलेट IOC, एडिशनल कैपिटल. Additional capital figure is 1 lakh rupees. 1 lakh into 10 upon 100 into 6 upon 12. तो ये हमारा आ गया आपका 5,000 rupees. तो total IOC to be given is 60,000 plus 5,000, that comes to 65,000. आई थिंक इसमें कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है. हमने यहाँ पे क्या किया, ओपनिंग बैलेंस आपको कैपिटल का दिया हुआ था, एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा, एंड क्लोजिंग इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. सिंपल आपने क्या किया, ओपनिंग के ऊपर पूरा ईयर का जो है पार्टनर को IOC पे करी फर्म ने. एडिशनल कैपिटल में व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कब उसने इंट्रोड्यूस किया, अक्टूबर में किया, जुलाई में किया, जो भी आपका डेट होगा, मंथ होगा, वहां से लेकर टिल फाइनेंशियल ईयर जहां क्लोज हो रहा है, आप उतने नंबर ऑफ जो है मंथ्स कैलकुलेट करोगे और उसके ऊपर हम IOC देंगे. लाइक जैसे बैंक्स में हम लोग जब लोन पे करते हैं, हमें उसके ऊपर हम लोग जो है बैंक को पे करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आपने याद होगा 11th क्लास में इन फाइनल अकाउंट्स हमने जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी थी तो हम लोग उसमें भी पीरियड मेंशन करते थे, राइट. तो वही सेम पे आपको यहाँ पे भी आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल. Let's take second example, children. Okay. On 1st April 2019, opening balance is not given in the question, right? Then comes additional capital on, let's say, 1st July 2019. Additional capital is given as 3 lakh rupees, right? And on 31st March 2020, closing capital is given as 8 lakh rupees. Let's say 8 lakh rupees. अब क्या करें, ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट IOC at the rate of 10% per annum. Calculate IOC at the rate of 10% per annum. अब IOC आपको सबको पता है कि हम लोग इस पे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, बट क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं हुआ. तो अब यहाँ पे क्या करें, अब हमको लाइक आई सेड हमको बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा. मीन्स हमें क्लोजिंग जो चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं उनको माइनस करेंगे, और जिनको हम लोग माइनस करते हैं उनको हम प्लस कर देंगे. सिंपल यही फॉर्मूला है इसका. सो 8 लाख रुपीज़ नॉर्मली आप क्या करते हो, इफ़ यू रिमेंबर, आप एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हो, ड्राइंग्स को आप माइनस करते हो. बट यहाँ पे क्योंकि हमें वापस बैक टू स्क्वायर वन पे पहुँचना है, तो जो चीज़ें हमने माइनस करी होंगी उनको ऐड करेंगे, जिनको ऐड किया होगा उनको माइनस करेंगे. तो अब यहाँ से अगर आप देखो, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल दिया है, ओपनिंग आपको निकालना है, तो 8 माइनस 3 5 लाख रुपीज़ हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. एडिशनल कैपिटल अगर ये नहीं हुआ होता तो हमारा कितना बैलेंस होता ओपनिंग का, ऐसे आप निकालोगे. अगर ये ड्राइंग सपोज यहाँ ड्राइंग्स भी दी होती, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को हम लोग माइनस करते हैं, बट ये ड्राइंग्स अगर नहीं करी होती तो हम पहुँच जाते ना अपनी इनिशियल जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है उस पर पहुँच जाते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन होगा IOC का, और लिखे हो IOC. फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल equal to closing capital, that is 8 lakh rupees minus additional capital, that is 3 lakh rupees.
So our opening capital is 5 lakh rupees. ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर हम लोग आईओसी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग के ऊपर निकालते हैं 5 लाख रुपीज इंटू 10/100, ये आपका आ गया पूरा 50,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको जो एडिशनल है, अगेन आपने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया, तो 1 जुलाई टिल 31 मार्च आपके कितने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किसके ऊपर? 3 लाख के ऊपर। तो 3 लाख इंटू वेट अपॉन 100 इंटू पीरियड 9/12। तो ये आप कर लो, इसका आपका आ जाएगा 3 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, दिस कम्स टू 22,500। 22,500। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल आईओसी 50,000 प्लस 22,500, दैट कम्स टू 72,500। ये हमारी आ गई टोटल आईओसी। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, एडिशनल कैपिटल इज गिवन, देन क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन। जिन चीज़ों को आप नॉर्मल जब आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, जिन चीज़ों को आपने ऐड किया था कैपिटल के अंदर, उनको आप यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे। और जिन चीज़ों को माइनस किया था, लाइक ड्राइंग्स को माइनस करते थे, तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस में जाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। सिंपल है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले 8 लाख माइनस 3 लाख रुपीज जो आपको गिवन एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपको मिल गया 5 लाख रुपीज। ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं कहीं दिखाया। देन 5 लाख के ऊपर 10% आपने कैलकुलेट कर लिया फुल ईयर के लिए, क्योंकि फर्म ने वो पूरा पैसा फुल ईयर यूज किया, तो 50,000 उसके ऊपर आईओसी फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। 3 लाख जो एडिशनल कैपिटल है उसके ऊपर 10 इंटू 9/12। 9/12 क्यों किया? क्योंकि कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2019। तो जुलाई टिल 31 मार्च हमारे पास कितना मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स आपने कैलकुलेट किए, 22,500 आपका अमाउंट आ गया। दोनों को टोटल किया, टोटल आपका आ गया, टोटल आईओसी 72,500। राइट, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ एग्जांपल नंबर 3। 1st April 2019, opening balance is not given in the question. Additional capital as on 1st July 2019, additional capital 5 lakh rupees. Then comes drawings as on 1st October 2019, drawings let's say 3 lakh rupees. ये क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम डूइंग, राइट। सो 31 मार्च 2020, closing capital is let's say 12 lakh rupees. IOC is at the rate of 10% per annum. So we have to calculate IOC. Okay. Now what we have to do, मैंने अभी आपको बताया था कि हमको यहाँ पे क्या करना है। नॉर्मल केसेस में जिन चीज़ों को आप कैपिटल के अंदर ऐड करते थे उनको आप माइनस करोगे, जिन चीज़ों को आप माइनस करते थे उन चीज़ों को आप ऐड बैक करोगे। तो लेट्स से ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 12 लाख रुपीज। ऐड किसको ऐड करेंगे? ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स 3 लाख रुपीज
15 लाख रुपीज आ गया टोटल, माइनस एडिशनल कैपिटल, इसको माइनस करेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल को, दैट इज 5 लाख रुपीज, इसको हमने माइनस कर दिया। कितना आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल इज 10 लाख रुपीज। सिंपल। ये आगे हमारा यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर आईओसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आईओसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10 लाख रुपीज के ऊपर हम लोग 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, कम्स टू 1 लाख रुपीज। और एडिशनल कैपिटल हमारा कितना है 5 लाख। बट यहाँ पे क्या करना है, पूरा ईयर का नहीं देना, जुलाई से मार्च तक देना है, तो हमारे हो गए 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 37,500। 37,500, बस ये आपका टोटल आईओसी आ जाएगी। क्लियर? एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं इसको दोबारा से। ये आपका आया है, ये आया 1,37,500 टोटल आपकी आईओसी आ जाएगी। 1 अप्रैल बैलेंस इज नॉट गिवन, एडिशनल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, ड्राइंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करने को बोला है, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले हमने लिया 12 लाख रुपीज, ड्राइंग्स को हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमको वापस बैकवर्ड जाना है, हमें यहाँ अभी हम यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने के लिए 12 लाख रुपीज में इसको जो आप नॉर्मली क्या करते हैं ड्राइंग्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे मैंने वापस इसको ऐड कर दिया। 5 लाख एडिशनल कैपिटल, हम ये मान के चल रहे हैं अगर ये ड्राइंग्स नहीं होती, ये एडिशनल कैपिटल नहीं होता तो एक्चुअल का जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो तभी निकलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, जो ड्राइंग्स करी उनको हटा दिया, जो एडिशनल कैपिटल दिया उसको हमने हटा दिया, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। तो क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग्स उतना अमाउंट वापस ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल हमने माइनस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ गया। इसके ऊपर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। ध्यान क्या रखना है, एडिशनल कैपिटल की डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, कब इंट्रोड्यूस किया पार्टनर ने। अगेन आप उस पर पीरियड लगाओगे, यहाँ पे पीरियड लगाने के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 9 मंथ्स का आ गया, तो 1,37,500 टोटल आपकी आ गई आईओसी। Now let's take another example, but we will try to do with second method. Okay, एक मेथड और है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मेथड और है, उसको भी देखते हैं कि उससे कैसे अगर हम लोग को ओपनिंग कैपिटल अगर कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे आएगा। सो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। आईओसी नहीं यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल देखेंगे कि कैसे आता है, राइट। सो हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, रफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, से फॉर एग्जांपल पी क्यू, देन पर्टिकुलर्स, here also particulars, again 2 more column P Q। तो assume कर लेते हैं कुछ भी balances by balance brought down। ऐसा करते हैं Q को अभी छोड़ देते हैं, खाली एक ही पार्टनर के साथ हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट को, to have more concept clarity। by balance brought down let's say 5 lakh rupees। Then what is next? Additional capital by, वैसे यहाँ पे हम लोग बैंक लिखते हैं बट अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो एडिशनल कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बैंक आता है जब भी अगर कोई पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैंक, क्योंकि बैंक बढ़ता है फॉर्म का तो हम बैंक लिखते हैं, बट यहाँ पे इवन राइट अभी एडिशनल कैपिटल लेट्स से 3 लाख रुपीज, राइट। इसको अभी हम छोड़ रहे हैं ऐसे। देन अब हमने एज्यूम करो कि एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी हमने इसमें बना लिया है, तो वहां से बैलेंसेस को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या क्या हो सकता है, सी आईओसी
लेट्स से 10,000. देन सैलरी कितनी दे दें इसको, 30,000. और क्या दें इसको, कमीशन भी दे देते हैं. चलो कमीशन 40,000. कितना हो गया, 70, 80, 20 का क्या करते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं इसको. प्रॉफिट 20,000. ये हमारा कितना हो गया, 60, 70, 1 लाख और 9 लाख रुपीज टोटल आते हैं यहाँ पे हमारा. ओके 9 लाख. देन यहाँ पे हम लोग 2 ड्रॉइंग्स दिखा देते हैं. ड्रॉइंग्स हम दिखा देते हैं 2 लाख रुपीज की. अगेन यहाँ पे बैंक ही आएगा. जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग ड्रॉइंग्स 2 लाख. और इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी दिखा देते हैं 2 IOD 20,000 रुपीज. ओके अब इसको यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर देते हैं. 9 लाख रुपीज. यहाँ पे तो हमने बैलेंस इसको छोड़ दिया हमने, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अभी. देन बैलेंस क्लोजिंग कर लेते हैं. 9 लाख माइनस 2 लाख 20, 2 बैलेंस कैरी डाउन 6,80,000 हमारा क्लोजिंग आ गया. ये एक इमेजिनरी कैपिटल अकाउंट बनाया है सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि हम लोग जो अभी ओपनिंग बैलेंस बार बार हम लोग ये वर्ड रिपीट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल ये कैसे निकलता है. अदरवाइज जो भी अब तक हमने मेथड किया वो ही फॉलो करोगे. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल से कैसे हम लोग क्लोजिंग अगर है तो ओपनिंग पे कैसे जा रहे हैं हम लोग. राइट. सो यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन कर देती हूँ. ओपनिंग कैपिटल इज गिवन. यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा. यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा. ओपनिंग कैपिटल हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाली फिगर नहीं है अभी. ओके तो अभी हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं. क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन. क्लोजिंग कैपिटल ओके फिगर इज 6,80,000. 6,80,000. अब आपको क्या करना है, एडिशनल कैपिटल आपको 3 लाख दिया है. हमने क्या बोला था, जो चीजें हम ऐड करते हैं उनको भी माइनस करना है. सो माइनस एडिशनल कैपिटल. आई होप बोर्ड इज क्लियर. एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपीज. राइट. दिस कम्स टू 3,80,000. अब क्या करना है, ये जो है IOC सैलरी कमीशन प्रॉफिट ये भी हम माइनस करेंगे. माइनस IOC माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस प्रॉफिट. फिगर्स लिख लेते हैं यहाँ पे. 10,000 देन 30,000 40,000 20,000. इनका टोटल कितना था, 1 लाख. सो 1 लाख माइनस किया 3,80,000 में से 2,80,000 हमारा अमाउंट आ गया. अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करना है. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड. ड्रॉइंग्स को हम लोग वापस ऐड करेंगे कि इतना पैसा अगर नहीं निकाला होता पार्टनर ने तो क्या बैलेंस होता. तो हम लोग IOD और ड्रॉइंग्स दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड 2 लाख ड्रॉइंग्स ऐड IOD. IOD इज 20,000 रुपीज. तो टोटल कितना हो गया आपका 5 लाख रुपीज. सी ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल. अब यहां देखो, यहां भी 5 लाख ही था, आपका आ गया 5 लाख रुपीज. तो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल. राइट. So let's take another example, case 2. Now case 2 is computation of opening capital under fixed capital. अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने जो किया था वो था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अब हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल अगेन पार्टनर्स कैपिटल. आपके 2 अकाउंट्स है, पार्टनर कैपिटल एंड वन इज योर करंट अकाउंट. तो हम लोग को मेन जो है वो हमारा कौन सा रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो लेट्स प्रिपेयर वन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इमेजिनरी. अगेन मैं अकाउंट बना रही हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. A
B. Then particulars A, B. So first we will write by balance BD. B का भी हम लोग अगेन कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम A का लिखेंगे अभी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. 5 लाख रुपीज बाय एडिशनल कैपिटल, लेट्स से 3 लाख रुपीज. ओके, इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं. 8 लाख रुपीज. सी आप लोग को ना अंडरस्टैंड करना है कि लॉजिक क्या है, इसलिए मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ. अदरवाइज ग्रेवाल में मैं ये एग्जांपल्स आपको और भी मिलेंगे, बट ये ग्रेवाल के नहीं है, तो इसलिए मैंने इजी एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं. हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए. रटाफिकेशन स्ट्रिक्टली बिग नो आपको नहीं करना है. अदरवाइज आगे क्या होगा, बीकॉम में या बीकॉम ऑनर्स करोगे, आगे सीए सीएस जो भी आप करते हो वहाँ प्रॉब्लम आएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. तो हम क्यों कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. राइट. सो यहाँ पे हम लोग 2 कौन सी ड्राइंग आएगी, परमानेंट. परमानेंट वैसे लिखते नहीं है, अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी न्यू ये है हम लोग के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार ये सब चीजें लिख रही हूँ. एडिशनल कैपिटल, परमानेंट कैपिटल. सी दिस इज योर माइनस साइड इन कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज प्लस साइड. अगर कैपिटल पार्टनर का बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है उसका, तो यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे माइनस होता है. सो टू परमानेंट ड्रॉइंग्स लेट्स से 1 लाख रुपीज. ठीक है, 1 लाख ले लेते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं. 2 बैलेंस CD 8 - 1 7. तो 7 लाख रुपीज हमारा यहाँ पे आ गया. अगेन इसको हम क्लोज कर देते हैं. 8 लाख. अब इसमें भी एक बार देखते हैं ओपनिंग कैपिटल. सपोज फॉर एग्जांपल ये हमको नहीं पता, ये फिगर हमको नहीं पता, तो कैसे निकलेगा ओपनिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल, ध्यान आपको क्या रखना है, अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के अंदर सिर्फ यहाँ पे आप जो है ये वाला पार्टनर कैपिटल को कंसिडर करोगे. करंट अकाउंट को मत ले लेना. यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस देन एडिशनल कैपिटल. यहाँ पे डेबिट साइड जो ये माइनस साइड है, डेबिट साइड, यहाँ पे सिर्फ परमानेंट ड्रॉइंग्स या फिर क्लोजिंग बैलेंस. इसके अलावा और 5th आइटम आ ही नहीं सकती यहाँ पे. तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं. तो क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन. हम एज्यूम करें कि क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है, ओपनिंग नहीं पता, तो ओपनिंग हम यहाँ पे इस फिगर पे हमें पहुंचना है. तो 7 लाख रुपीज. देन ऐड ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, ऐड. तो ऐड परमानेंट ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपीज. 1 लाख को ऐड कर दिया, टोटल कम्स टू 8 लाख रुपीज माइनस एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल. ये सब एग्जांपल्स ना मुझे नोटबुक में तुम लोग की चाहिए, और जैसे स्कूल रीओपन होंगे आई वांट टू सी ऑल दीज एग्जांपल्स इन योर नोटबुक along with main exercise questions. Additional capital 3 लाख रुपीज. तो आपका आ गया 5 लाख माइनस करने के बाद. तो दिस इज अवर ओपनिंग कैपिटल. आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आईओसी कैसे कैलकुलेट करनी है, आईओसी कब कैलकुलेट करनी है. व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज गिवन. इफ इन केस क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, आपको क्या करना है, वापस ओपनिंग निकालना पड़ेगा. अगर क्लोजिंग पे आपने आईओसी कैलकुलेट कर दी वो गलत हो जाएगी, ओपनिंग पे ही आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है. राइट. एक बार दोबारा से देखो इसको. ये साइड आपकी डेबिट की होती है माइनस की कैपिटल अकाउंट में, ये प्लस. जब आप पार्टनर्स को कुछ देते हो तो यहाँ पे आप उसको ऐड करते हो, और जब उनसे कुछ लेते हो तो यहाँ पे उसको आप माइनस कर देते हो. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ विल स्टार्ट विद आवर मेन एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम टीएस ग्रेवाल. यस मिहिर, कुछ बोल रहे हो? आप गुस्से में पढ़ा रही हो आज? गुस्से में लग रही हो? अच्छा, वही मैं गुस्से में लग रही हूँ. क्यों लग रही हो गुस्से में? बात नहीं कर रही तुम लोगों से आज. क्या बात करूँ तुम लोगों से आज? तुम लोगों को मैं एक्टिविटीज देती हूँ, तुम लोग ओके मैम ओके मैम ओके मैम, उसके बाद कोई तुम लोग का रिप्लाई नहीं आता. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? शुड आई बिहेव लाइक एंग्री बर्ड? तुम लोग के पीछे पढ़ूँ कि एक्टिविटीज दो मुझे करने की, मुझे दो, भेजो मुझे एक्टिविटीज करके. For me, class 11th and 12th is equivalent to college going students. अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को बार बार रिमाइंडर्स दूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल. आई बिलीव इन प्रोएक्टिव अप्रोच. तुम लोगों को प्लीज ये समझना पड़ेगा कि तुम लोग
नेक्स्ट ईयर कॉलेज में पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम लोग आगे अपने अपने करियर्स में चले जाओगे, तो क्या करोगे तुम लोग? तो इसीलिए आज मेरा बिल्कुल मैंने सोच के आई हूँ कि आज मैं सिर्फ आऊंगी क्लास में, पढ़ाऊंगी एंड आई विल लीव द क्लास, आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर, क्योंकि तुम लोग को समझ ही नहीं आ रहा, तुम लोग को लग रहा है कि मैम तो हमें रिमाइंडर्स देंगी, हमारे पीछे पड़ेंगी। सॉरी, मैं ये नहीं करने वाली हूँ, राइट? तो जिसको एक्टिविटीज कंप्लीट करके देनी है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं देनी है इट्स ओके फॉर मी, बट वेन एवर स्कूल रीओपन्स मुझे ये सारा जो जितना भी मैं काम करा रही हूँ मुझे नोटबुक में चाहिए, राइट? तो मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप आऊंगी क्लास में, पढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं करूंगी। मेरे पास इतनी बातें होती ना तुम लोगों के साथ करने के लिए, लेकिन अब मैं कोई बात नहीं करूंगी तुम लोगों के साथ, मैं आऊंगी, पढ़ाऊंगी और चले जाऊंगी, दैट्स इट, ओके?